Namaste, good evening, friends. As we see, most of us have started joining. So today we have a session which is the second session for the Beyond Classroom series 14. And we are having 10 sessions in this particular season. And all these sessions are connected with increasing your productivity through using of some of softwares, tools, and games. So today, a very interesting part of our profession, and that is called asset allocation. How we can use games and how we can use tools, and how actually asset allocation can help an investor to actually grow. So let's welcome none other than volatility coach Devendra Goswami from Ludhiana. He has been recognized by various forums, which includes the government of Punjab, Mutual Fund Roundtable, and Financial Freedom Fraternity as one of the most influential volatility coach. So he has been helping his clients not only in Punjab but also in Delhi and various other cities also. And he keep traveling and meeting people and a hardcore networker. Had a corporate life. He has worked with SBI and leaving his corporate life, he has started his entrepreneur journey not many years back. But again, more than anything else, he is a very good person at heart. Try to connect with everyone, try to convince people for the good. So you have to be on a holiday with him to know what Devendra Goswami is actually. A very, very interesting personality and a person to be with. And a friend like him is something very, very nice for anyone, and especially for our community. So that's fine. More you will see, और आप लोग और देखेंगे जैसे जैसे उनको सुनेंगे. So let's hear it from Devendra Goswami. Over to you. Thank you so much, sir. इतना कुछ आपने बोल दिया. Seriously, I have to live your words now. Thank you so much, and all present. Good afternoon to all present. My all friends are there, और आज ऑनलाइन मीटिंग हो रही है. बहुत ही शानदार लग रहा है. Otherwise, last year April we were together in Goa. All right. So starting the topic, it's asset allocation. The topic chosen by me. It's very, very interesting. Although practicality, it is very difficult. जैसे मैंने कनक जी से पहले भी डिस्कस किया है. तो Kanat ji has developed very interesting game for asset allocation. Definitely, we will play the game also today. But this is just a one pager of this. कहानी की शुरुआत होती है just 2000 years back. जाना पड़ेगा. उस समय सोने की एक गिन्नी आती थी, छोटा सा जो पीस आता था, सिक्का आता था. और ये this is just written over there. तो definitely it has been taken from somebody. तो उस समय भी एक सिक्के से एक महीने का पूरा खर्चा चल जाता था, सरप्राइजिंगली 2000 साल पहले. एंड राइट नाउ आल्सो उसी एक सिक्के से एक नॉर्मल फैमिली का, एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा चल जाता है. इजंट इट सरप्राइजिंग? बट एक्चुअल में हुआ क्या है? एक्चुअल में हुआ ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे जैसे बढ़ी है तो उतना सोना भी वैसे वैसे बढ़ा है. सो दिस इज called purchasing power of money or asset class or gold. For the last around 18 years, I have a chart. This is something very interesting. और मुझे लगता है आप सबने ये कई बार देखा होगा, हर साल देखते होंगे और आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर भी करते होंगे. And this chart clearly shows what is the asset allocation or means asset class ने क्या डिलीवर किया है. और जो सबसे ज्यादा शानदार चीज है कि किसी भी एसेट क्लास ने अपने आप को विनर शो ही नहीं किया कभी भी. तो कभी भी हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते हैं कि दिस एसेट क्लास ओनली कैन डू द वंडर्स इन लॉन्ग टर्म और इवन शॉर्ट टर्म ऑल्सो. यू कैन वेरी विल सी हियर. अब 5 से 7 तक चले तो इक्विटी वॉज किंग. देन 8 से 9 गोल्ड वॉज किंग. अगेन इक्विटी, देन 2 years अगेन गोल्ड. एंड 13 को क्या हुआ? 13 को सभी नीचे रह गए.
and inflation was at the top. CPI was at the top at 10% और उससे नीचे debt और equity थे. Then again it was the era of equity, only couple of years. Then gold, 3 years of equity, then gold, 2 years of equity, then again last year of gold. Isn't it surprising and interesting? मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार है. और सबसे ज्यादा परेशानी वाली चीज क्या है कि इसमें जो एसेट क्लास जो करते हैं तो उसके विद इन एसेट क्लास भी क्या रहता है वो देखेंगे. अब 2013 की बात करते हैं तो इट वाज इक्विटी बट इट वाज लार्ज कैप एट द टॉप, एंड अगेन mid cap and small cap were in minus, negative returns. Small cap 71% up, mid cap 56-34. Small cap was the winner. Against 2017, small cap was the winner. 2020 and 21, small cap and small cap. So within asset class also, within equity also, there are large cap, small, mid cap and small cap who could be winner at given point of time. Again, in asset class debt, 2013 it was short-term debt who was performing, and see the long-term return, long-term debt return. Surprisingly, it is below zero. It was negative. And again, this type of example we can also see in 2021, where short-term debt was at 4.5% around, but long-term debt was close to zero. It was 1%, 1.5% kind of thing. So debt was not at all performed in 2021, but within debt class also, that long-term debt was never performed. And again, last year also, it was close to zero. So ये सब एक्चुअल में क्या कहना चाहता है? ये ग्राफ है पिक्टोरियल फॉर्म में, मैं सिंपली दिखाना चाहता हूं कि स्मॉल कैप ऑफ और निफ्टी 50 की रेशो क्या थी पिछले 15 से 20 सालों में. तो आप देखेंगे कि 2008 में, सबको याद होगा, मुझे लगता है कि जितने भी हम यहाँ पे फ्रेंड्स हैं तो 2008 सबको याद होगा, मुझे तो बहुत ही अच्छी तरह से याद है. तो वी वर हैविंग ओवरवेट ऑन स्मॉल कैप एंड सी द परफॉर्मेंस. और जैसे ही दिसंबर 9 आया तो वी वर ओवरवेट ऑन लार्ज कैप. उसके अगेन फिर हम ओवरवेट चले गए स्मॉल कैप में. सीधा ग्राफ मींस जो कॉम्बिनेशन भी चल रहा है लास्ट 15 से 20 साल से, तो हम विद इन एसेट क्लास कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. अगेन डेट का चार्ट, ओवरवेट ऑन शॉर्ट टर्म डेट 2008 से लेके 11 तक, देन 13 से फिर 16 तक हम ओवरवेट थे गिल्ट फंड में, जीसेक में, और उनकी रिटर्न थी इन केस इफ यू रिमेंबर इट वाज 10 to 12%. Kanat ji must be admit in that. And then it was 17-18, it was the time of short term debt. Again, then it was the time of guilt. It is so much confusing that it cannot be perceived or projected by anybody, actual anybody. Everybody is given the reaction. Nobody can take the proactive measures. Proactive measures क्या हो सकते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे in the middle of this presentation. So basically इनके रीजन क्या रहे थे डेट की, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था तो मैंने ये भी अपने स्लाइड में ले लिया कि हेडलाइन देखो मार्च 2020 में क्या हेडलाइंस आ रही थी. The global economy is expected to contract by 3% this year as quarantines and lockdown cripple output. मैंने जान के 2020 की हेडलाइंस ली हैं so that we can just remember, क्योंकि अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं और we can revisit the things. तो एक ही साल में और विद इन 9 महीने में क्या चेंज हुआ. मार्च में लॉकडाउन था और इट वाज मींस पीक ऑफ द लॉकडाउन. उससे पहले तो सिर्फ न्यूज आ रही थी. लॉकडाउन असल में जो हैपन हुआ था इट वाज हैपेंड इन 23 मार्च ऑफ 2020. एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट. और उस समय की हेडलाइन ये है
This was the fastest 30% sell-off ever, exceeding the pace of declines during the Great Depression. Great Depression जब भी आया था 50-100 साल पहले, even उससे ज्यादा sell off था. And Great Lockdown means even the best of mind failed to capture the asset class trend उस समय. और within 9 months सब कुछ नेगेटिव था, और within 9 months देखो क्या हुआ सरप्राइजिंगली, क्योंकि मार्केट वाज 23,000 एट दैट टाइम 23rd of March को, एंड उसके बाद सीधा जूम हुई और सीधा उसने ऐसे वी शेप रिकवरी मारी, एंड इट वाज द हेडलाइंस, इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर्स फेवर इंडिया, एक्सपेक्ट रैली टू रोल ऑन इनटू 2021 की तारीफ शुरू होगी सारे तरफ. मूव ओवर बॉन्ड्स, इट्स स्टॉक टर्न इन इमर्जिंग मार्केट स्पॉटलाइट. सब कुछ सही हो गया 9 महीने में, जबकि इट वाज पार्शियल लॉकडाउन. So you cannot assume, you cannot predict, you cannot project anything. और सबसे ज्यादा जो व्यू पॉइंट चेंज होते हैं, you know very well वो किसके चेंज होते हैं? They are our esteemed, analysts. Not to talk about any, but esteemed analysts के जितने चैनल्स चलते हैं, फाइनेंशियल न्यूज के चैनल चलते हैं, जो भी एनालिस्ट हैं उनके विद इन 3 months, 6 months, 9 months टोटली एनालिसिस चेंज हो जाते हैं. It is always focus fund who are there. ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल स्लाइड है, बट इंटरेस्टिंग भी है. इन केस यू रीड द नंबर्स, तो ये सिंपली ये बताने की कोशिश कर रही है. अभी हम पहले मल्टीपल एसेट की बात नहीं करेंगे, जस्ट इक्विटी, फिक्स इनकम एंड गोल्ड की बात करेंगे. तो CAGR रिटर्न्स देखिए, ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि पिछले 15 सालों में जो इक्विटी की रिटर्न है 9.5% है, और फिक्स इनकम की रिटर्न इट इज 7.7%. ओके, टेक इट 8%. और गोल्ड की जो रिटर्न है इट वाज द हाईएस्ट फॉर 15 years CAGR. अभी मैं मल्टीपल एसेट की बात नहीं करूंगा. 10 years अगेन इट वाज द इक्विटी CAGR की अब हम बात कर रहे हैं. तो 10 years का किसने पोर्टफोलियो इन केस बनाया है अकेले इक्विटी में, देन इट वाज विनर. अदरवाइज फिक्स इनकम और उसमें कम आया है. और 7 years में भी इक्विटी ठीक है, 5 years में भी ठीक है, और 1 year में तो चलो ठीक है ही. बट इन केस उसने मल्टीपल एसेट पोर्टफोलियो बनाया होता, तो ये देखो 5 years में he could have earned the maximum returns. Although it was in gold, but मुझे पता है 15 साल तक गोल्ड में पूरा कोई इन्वेस्टेड रहा ही नहीं होगा और रहता भी नहीं है कोई. तो मल्टीपल एसेट पोर्टफोलियो इज द विनर इन दिस केस. इन लास्ट 15 years equity I have taken the only that blue chips for your general purpose only. Again अब एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी की बात करते हैं. तो पिछले 15 सालों में 21% की स्टैंडर्ड डेविएशन मींस वॉलेटिलिटी मींस स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिकॉर्ड हुई है पिछले 15 सालों की, दैट इज 22, नियर अबाउट 22. और गोल्ड में भी इक्वल वॉलेटिलिटी है. बट मल्टीपल एसेट में देखो आप कितनी क्योंकि एनुअलाइज वॉलेटिलिटी में हम एक्चुअल में डेट की बात नहीं करेंगे. डेट हमेशा स्टेबल टाइप ऑफ रहता है, और आप देखोगे भी कि उसकी वॉलेटिलिटी 1 से और 2% के बीच में है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे. बट गोल्ड और इक्विटी की वॉलेटिलिटी देखो और मल्टीपल एसेट की वॉलेटिलिटी देखो, तो सीधा कॉम्बिनेशन ऑफ 15 years वॉलेटिलिटी एंड रिटर्न, इट इज 13% वॉलेटिलिटी एंड रिटर्न इज क्लोज टू 11%. इट इज कंप्लीट विनर स्ट्रेटेजी मल्टीपल एसेट क्लास की. अगेन कमिंग टू शार्पे रेशो, शार्पे रेशो में भी आप देख सकते हो कि जो विनर है वो ऑलमोस्ट मल्टीपल एसेट चल रहा है. इवन 7 सालों में तो बहुत अच्छी ये शार्पे रेशो दे रहा है 0.6. इट इज वेरी वेल इन क्लास, सो लॉन्ग टर्म ये फीचर था. हिस्टोरिकली एसेट एलोकेशन हैज हेल्प जनरेट बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स. इट इज क्लियर इन द चार्ट्स. अगेन दैट इज द सेम डिपिक्शन ओवर द चार्ट. अब यहां पे आते हैं कि कुछ ये कंपनीज का, ये सिंपली एक कुछ कंपनीज का डेटा है, आई हैव टेकन फ्रॉम देम. तो एसेट एलोकेशन किस तरह की करते हैं वो लोग या करनी चाहिए ड्यूरिंग रिसेशन. रिसेशन मींस जब 20 में रिसेशन आया, बट क्या ये रिसेशन एक्चुअल में रिसेशन था?
एक्चुअल में नहीं था, क्योंकि इट वाज ए शार्प करेक्शन, देन इट वाज शार्प बुल रन. तो nobody could have predicted this type of means sharp decline also and sharp bull run also. तो ये रिसेशन नहीं मानेंगे, बट रिसेशन होते हैं जैसे 2011 में आया था, 2008 में आया था, 2013 में भी थोड़ा सा आया था, और 2002-4 में आया था, 2005 में भी आया था. दैट इज द रिसेशन वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये देखो, आपको ये रिसेशन इन्होंने, जो सबसे बड़ा रिसेशन आया था, इट वाज इन 2008 अगेन. तो उस, बिकॉज इट वाज ग्लोबल. तो ये रिसेशन में इन्होंने किस तरह से लिया है कि बॉन्ड की जो है वो सबसे ज्यादा रेशो बढ़ाई हुई है इन्होंने. देन सेकंड इज गोल्ड. तो ये दोनों आपको ही पता है सबसे सेफेस्ट एसेट क्लास है, तो उनकी एलोकेशंस इन्होंने बढ़ाई हुई है. एंड इफ वी टॉक अबाउट इक्विटी, देन देयर इज सेफेस्ट इक्विटी विद इन इक्विटी इज एसेट क्लास लार्ज कैप. तो लार्ज कैप की एलोकेशन बढ़ाई हुई है. नाउ कमिंग टू रिकवरी. रिकवरी में देखो आप कि लार्ज कैप उन्होंने घटा दिया और मिड एंड स्मॉल कैप बढ़ा दिया, और बॉन्ड तो ऑलमोस्ट मींस हाफ से भी कम कर दिया, और जो ग्रे पोर्शन है गोल्ड, जो कि वो भी कम कर दिया. गोल्ड और बॉन्ड ये देखोगे आप आसपास चल रहे हैं हमेशा. और ड्यूरिंग एक्सपेंशन आप समझते हैं कैपेक्स टाइम जो होता है, तो कैपेक्स टाइम में अगेन इक्विटी कुड बी द विनर. अगेन वो इन्होंने बॉन्ड और गोल्ड को थोड़ा थोड़ा रखा है. ये रिकवरी और एक्सपेंशन का ग्राफ ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आएगा इन केस आप एसेट मिक्स देखेंगे इसमें. तो स्लो डाउन में, स्लो डाउन इज नॉट रिसेशन, स्लो डाउन इज कुड बी बिफोर रिसेशन और आफ्टर रिसेशन, दैट इज कॉल्ड स्लो डाउन. और स्लो डाउन में ऑलमोस्ट सभी जो एसेट क्लास है, दीज आर इन इक्वल. आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा, देखने में डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है. तो ये डिजाइन इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल बिहेव कर रहे हैं ड्यूरिंग स्लो डाउन. एक फिलोसफर है जिन्होंने ब्रिज वाटर एसोसिएट्स, जो फाइनेंशियल क्लास में भी है, फाइनेंशियल प्लानिंग में काफी बड़ा नाम है, रे डेलियो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन हैव इज ए गुड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन मिक्स. सो व्हाट द इन्वेस्टर नीड्स टू डू इज हैव ए बैलेंस्ड structured portfolio, a portfolio that does well in different environments. ये जो 4 एनवायरमेंट बताए मैंने, उनमें सबसे अच्छा परफॉर्म कौन करता है? बैलेंस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो, बिकॉज वी डोंट नो दैट वी आर गोइंग टू विन और लूज ऑल्सो. वी हैव टू हैव डाइवर्सिफाइड बेट्स. इट इज ऑलवेज a dilemma whether to go for equity or debt. एक ये सर्वे में मैंने वैसे ये नहीं लिखा, इट वाज ए सर्वे 10 years back. अभी क्या है ये मुझे मिला नहीं तो मैंने वो डाला नहीं है. इट वाज 10 years back कि स्टॉक सिलेक्शन एंड अदर्स का जो विनिंग रेशियो थी, इट वाज 10% ओनली, और एसेट एलोकेशन की जो विनिंग थी, दैट वाज 90%. More than 90% of the portfolio returns are based on asset allocation decisions. वो किसी ने भी लियो, आपके फंड मैनेजर ने लियो, आपके एडवाइजर ने लियो, और इवन इन्वेस्टर, बहुत एजुकेटेड इन्वेस्टर है तो वो भी ले सकते हैं एसेट एलोकेशन के डिसीजन. और आई हैव सच इन्वेस्टर्स आल्सो जो लेते हैं डिसीजन. मैं उनको वाउच करता हूं, मैं उनको वेरीफाई कर देता हूं, इवन आई कैन सजेस्ट समथिंग मोर, लेकिन हम एसेट एलोकेशन पे स्टिक कर जाते हैं. ओके, अभी पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्या दिखाई देती हैं एसेट एलोकेशन के लिए? अब राइट नाउ इन केस वी टॉक अबाउट इंडिया, तो राइट नाउ वी आर, आवर प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट, सब जगह ऐड आ रही है, टीवी में भी आ रही है, मेक इन इंडिया थीम चल रही है. सो वी आर बेटिंग अपॉन द थीम मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मेक इन इंडिया. एंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड PLI, आत्मनिर्भर भारत, और जो भी इन्होंने ईज ऑफ बिजनेस डूइंग, उसकी रैंकिंग में भी हम बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं. सिंगल विंडो सिस्टम ये एप्लीकेबल कर रहे हैं, और डिफरेंट SEZ आ रहे हैं. कश्मीर को इन्होंने, जो जम्मू है उसको SEZ बना दिया है. कुछ एरियाज हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में है,
वहां पे आयुर्वेदिक के लिए इन्होंने ऐसी जेट्स बनाए हैं, बहुत से इंसेंटिव दे रहे हैं, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। और इवन वी आर टारगेटिंग द मोबाइल कंपनीज, दैट माइक्रोचिप्स कंपनीज। अभी वेदांता ने जो गुजरात में प्लांट लगा रही है विद फॉक्सकॉन के साथ मिलके, ज्वाइंट वेंचर के साथ। तो ये सारे शिफ्टिंग हो रही है ड्यूरिंग ग्लोबल, जहां जहां स्लो डाउन हो रहा है, तो वहां से हम शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया की तरफ। और गवर्नमेंट इसमें 100% सपोर्ट इन रोल प्ले कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट अभी वी हैव क्रॉस चाइना ऑल्सो इन पॉपुलेशन, और हमारी सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को पूरा जोर लगाना पड़ रहा है, बिकॉज वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री नाउअडेज, कि हम इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दें थ्रू वेरियस फैक्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स और मैन्युफैक्चरिंग, कि वो सारी जो जनरेशन है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो एम्प्लॉयमेंट में सेट ऑफ हो जाए। अदरवाइज हम बचपन में पढ़ते थे एक ऐसे कि पॉपुलेशन इज ए कर्स, बट नाउ इट हैज बिकम द ब्लेसिंग फॉर इंडिया राइट नाउ। हम इसीलिए रिसेशन से, ये कोरोना जो पेंडेमिक था, उससे सरवाइव कर गए, बिकॉज ऑफ अवर यंग पॉपुलेशन ओनली। बिकॉज आप देखेंगे एक्सपोर्ट दिनों दिन कम हो रहे हैं इंडिया में। मैं जिन क्लाइंट से एक्सपोर्ट यूनिट से डील कर रहा हूं, उनके एक्सपोर्ट पिछले 3 सालों में डिक्लाइंड हुए हैं, बट विद इन इंडिया उनकी विद इन इंडिया उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उनकी सेल्स भी डबल ट्रिपल होगी पिछले 3 सालों में। आई हैव नंबर्स विद मी, माय क्लाइंट्स ओनली। सो अगेन कमिंग टू, इन केस थीम उठाते हैं कि इन केस प्राइवेट बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई फंड मैनेजर्स, because there is still story of increase in market share based on high capitalization, better asset quality and healthy liability franchise. Basically private banks have been emerged far better than PSUs. everybody knows कि अभी पिछले 3-4 सालों में क्या हुआ है। that's why इनको जो ऑपरेशन वो इंद्रधनुष चलाया था कि 6-7 बैंक इन्होंने इकट्ठे करने हैं। Earlier it was 16 banks, now means 6-7 operational PSUs are there. Even now coming it is ऐसा कुछ न्यूज आ रही है कि 2-3 बैंक फिर मर्ज हो रहे हैं। It means I cannot name anybody, but तो private banks are emerging the leaders nowadays in financial institution। हम बात करें अब डिस्क्रिशनरी कंजप्शंस की बात करते हैं अगेन, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बहुत तेजी से शिफ्टिंग हो रही है। उसके लिए सबसे पहले क्या हुआ है कि जो गति योजना लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गति योजना जिसने कि आपके पूरे इंडिया में सारे भारत, दैट आई कुड नॉट रिमेंबर द एक्चुअल नेम, नितिन गडकरी ने क्या काम किया है, और उन्होंने सारे गेटवे जोड़ दिए हैं, क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटर इट वाज द नेम, कि सारे मेट्रो सिटीज और आउटर इंडिया को सारा उन्होंने जोड़ दिया है। और रिमोट जो इस समय विलेज है वहां तक भी रोड्स पहुंच चुकी हैं। उससे हुआ क्या है, उससे ये हुआ है कि जो आपके ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स भी अब रिमोट एरियाज तक, रिमोट रूरल लोकेशन तक पहुंचने लग गए हैं। आप किसी भी रूरल लोकेशन में चले जाओ, आप वहां पे देख सकते हो कि वो रिलैक्सो फुटवियर, बाटा फुटवियर पहन रहे हैं, ब्रांडेड टी शर्ट पहने हुए हैं, और हो सकता है ब्रांडेड मोबाइल भी लेके बैठे हुए हो। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कुरियर कंपनीज ऑनलाइन डिलीवर कर पा रही हैं रिमोट लोकेशन तक। तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बहुत पैराडिग्म शिफ्ट हुआ है। जो भी धीरे धीरे इनकम रेज हुई और उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हुई और उससे डिस्क्रिशनरी कंजप्शन रेज हो रही है। एंड कमिंग टू रॉ मटेरियल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, दे आर द मल्टी बैगर्स एनीवेज। जो भी पेनी स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज, मोस्टली जो केमिकल कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप्स हैं मोस्टली, और वो इतने, क्योंकि उनमें जो है उनमें इतनी तेजी से वैल्यूएशन क्रिएट होती है। जिस रॉ मटेरियल को देयर इज ए कंपनी, आई रिमेंबर दैट नोसेल इंडिया इज ए कंपनी, इफ कनक जी मस्ट बी नोइंग दैट, वो रबर को थिक करने के लिए यूज होती है। और नोसेल इंडिया ऐसी कंपनी है जिसका सिर्फ कंपटीशन चाइना में है, और चाइना की जो कॉम्पिटिटर कंपनी थी वो कुछ पोल्यूशन कंट्रोल की वजह से, रेगुलेशंस की वजह से उस कंपनी को शिफ्ट करना पड़ गया।
1-2 साल के लिए, एंड दैट टाइम नोसेल इंडिया वाज द विनर. आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल. और ये कई फंड हाउसेज ने ली भी हुई थी और उनको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिला, कई स्मॉल कैप्स ने ली हुई थी. और ये केमिकल ऐसा होता है कि जो टायर ट्यूब कंपनी इस केमिकल के बिना अपने टायर ट्यूब नहीं बना सकती, और इसकी मोनोपोली है इंडिया में आज भी. चाइना अगेन मतलब इंटरनेशनल मोनोपोली नहीं है, बट इंडिया में इसकी मोनोपोली है. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट स्पेशलिटी ऑफ केमिकल्स. तो इन सब की बात हमने इसलिए की कि विद इन एसेट क्लास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फंड मैनेजर को या पीएमएस मैनेजर को इन और इवन हमें इन्वेस्टमेंट मैनेजर को एक अट्रैक्ट करते हैं कि हम क्या क्या स्टडी करते हैं नॉर्मली इक्विटी में, कि हम उन तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप की तरफ. अगेन कमिंग टू मिथ्स ऑफ दैट एसेट क्लास, इक्विटीज, बॉन्ड और गोल्ड का होना क्या चाहिए. ए डाइवर्सिफाइड मल्टी एसेट पोर्टफोलियो दैट में हेल्प बेनिफिट फ्रॉम द cyclical nature of asset classes. This is very important. This word is very important. Bold underline, cyclical nature. एसेट क्लासेस का जो है वो साइक्लिकल नेचर होता है, वो हमने देख ही लिया, परफॉर्मेंस भी देख ली और फैक्टर्स भी समझ लिए. तो बिल्डिंग एन एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन सेलेक्ट टाइम बेस्ड ऑन रोबस्ट सेट ऑफ मैक्रो एंड मार्केट वेरिएबल्स. मैक्रो मींस हमें इंटरनेशनल जो न्यूज है उसकी तरफ भी ध्यान देना है, कंडीशंस की तरफ भी ध्यान देना है, क्या क्या चल रहा है, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है. अब राइट नाउ रशिया यूक्रेन चल रहा है, पड़ोसी देश थे, लड़ पड़े, चलो एनीवेज, अब वो तीसरी पार्टी की वजह से लड़े वो एक गलत बात है, बट उससे इंडिया को क्या फायदा हुआ. राइट नाउ इंडिया इज गेटिंग 30 मोर देन 30% डिस्काउंट आउट ऑफ दैट फ्रॉम क्रूड ऑयल, और ईरान से हमने काफी कम कर दिया है और रशिया से काफी बढ़ा दिया है पहले से. इवन यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि सैंक्शनिंग हो चुकी है रशिया को, तो यूरोपियन कंट्रीज भी हमसे तेल रिफाइन करवा के ले रही हैं, वो वही तेल जो कि रशिया वाला है. वी आर गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ दैट. सो अब हम बात करते हैं कि ये एसेट एलोकेशन क्या एक्चुअल में इतना आसान है. की फंडामेंटल ड्राइविंग रिटर्न्स फॉर इक्विटी आर क्विंसिडेंशियल वेरी डिफरेंट फ्रॉम ड्राइवर्स ऑफ गोल्ड एंड डेट. गोल्ड एंड डेट हमेशा एक्चुअल में एक इंश्योरेंस के रूप में यूज किया जाता है, बिकॉज फिक्स रिटर्न के आसपास इसकी रिटर्न होती है, 8 से 10% के आसपास की रिटर्न होती है. डेट अभी कुछ टाइम में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुआ है, अदरवाइज ये स्टेबल इनकम दे देता है. जो इन्फ्लेशन रेट है उससे 1-2% ज्यादा ये नॉर्मली दे देता है. तो उसकी बात करते हैं कि एक्चुअल में ये रीबैलेंसिंग इतनी आसान है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें एक होती है इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर, एक होता है इन्वेस्टर का बिहेवियर, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इट इज कॉल्ड बिहेवियर गैप. तो इसमें टैक्सेशन भी आती है, इसमें ग्रीड और फियर भी आता है, क्योंकि जब आप इक्विटी से शिफ्ट करोगे, मान लो आपको रिसेशन डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, बट सपोज एक पोर्टफोलियो इक्विटी का था, इट वाज 100% पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी फॉर लास्ट 6 years एंड the investor has earned 12% CAGR out of equity and it has been doubled. तो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आज 2 करोड़ का बन गया है. अब 1 करोड़ के पीछे 10% उसको टैक्स भी भरना है. If the investor is willing to pay 10 lakh of long-term capital gain, then only you can switch to bond or gold or to 50-50 to bond or gold. आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, उसको भी सब कुछ समझ में आ रहा है, बट is he willing to shell out that 10 lakh? ये बिहेवियर गैप है, इसको मैनेज करना ही वॉलेटिलिटी कोचेस का काम है. ओके, कमिंग टू a beautiful this now this presentation is available, these slides are available in our VC dashboard also. तो 4 स्टेजेस होती हैं वेल्थ की. वेल्थ आइडेंटिफिकेशन, वेल्थ आइडेंटिफिकेशन ये है कि रत्नेश जी ने अपने इन्वेस्टर को बताया कि ये आपको वेल्थ होनी चाहिए. किसी के लिए हेल्दी वेल्थ है, किसी के लिए मनी वेल्थ है, किसी के लिए टाइम वेल्थ है. हम नेचुरल है, हम मनी वेल्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो रत्नेश जी ने अपने एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टर को बताया कि सर आपके पास अभी सच नेटवर्थ है, अभी आपकी नेटवर्थ है 10 करोड़ रुपए, बट मुझे ऐसा लगता है
कि आने वाले 10 सालों के अंदर या 15 सालों के अंदर जिस हिसाब से आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको 100 CR चाहिए होगा। दिस इज बेसिकली वेल्थ आइडेंटिफिकेशन, कि आपको पैसा कितना चाहिए होगा। उसके लिए पहले तो रत्नेश जी क्या इतने तैयार हैं कि वो इतनी फिगर एज्यूम कर सकते हैं, 100 करोड़ या 150 करोड़? तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा वो विजन होना चाहिए सबसे पहले तो वीसी का। उसके बाद आती है बात, इन केस वी हैव आइडेंटिफाइड द थिंग, तो फिर ये वेल्थ क्रिएशन की तरफ चलते हैं। एंड वेल्थ क्रिएशन डेफिनेटली एसेट क्लास से होनी है, ठीक है। उसमें उसके करंट एसेट भी हम उठाते हैं, उसमें हम उसके पोटेंशियल एसेट्स भी उठाते हैं, और उसको फिर हम मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट में क्या आता है? पोर्टफोलियो का रिव्यू, देन रीबैलेंसिंग। टाइम टू टाइम उसकी रीबैलेंसिंग कैसे करनी है, उसका रिव्यू कैसे करना है। हमने 6 महीने का रिव्यू लिया हुआ है, रीबैलेंसिंग का 6 महीने का व्यू नहीं होना चाहिए। आपका है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करता इतने जल्दी। रिव्यू हम 6 महीने का कर सकते हैं, साल का कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग मुझे लगता है 2 साल से पहले नॉर्मली नहीं करनी चाहिए। इन केस ऑफ एडवर्स सिचुएशन फिर तो आप 6 महीने में कर सकते हैं। और अगेन द 4 मोस्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जितना वेल्थ आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही ये 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने वेल्थ आइडेंटिफाई याद करें किस लिए की थी कि सर आपकी फैमिली में आपके 4 बेटा बेटी हैं, तो आज से 15 साल के बाद उनको 25-25 करोड़ चाहिए होगा। ये हमने वेल्थ आइडेंटिफाई किया था आज 15 साल बाद के लिए, और रत्नेश जी ने बोला था कि मैं इनको 25-25 करोड़ दिलवाऊंगा आपके एसेट्स के थ्रू। तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी रत्नेश जी ने ही करवाने हैं। इट इज कॉल्ड एस्टेट प्लानिंग और विल्स। ये सेशन भी आएगा, गिरीश जी लेंगे हमारे। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली concluded part of our financial management, financial planning, but it is the 4 most important part. Likewise wealth identification is। क्यों रत्नेश जी, ऐसा ही है? Give me thumbs up। All right, तो हमने एक मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, हम सभी लोगों से मीटिंग्स करते हैं, इन्वेस्टर से, पोटेंशियल इन्वेस्टर से, अपने करंट इन्वेस्टर से, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से भी और पोटेंशियल इन्वेस्टर से भी। और हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने की, और उसके लिए हम उनका एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। बट एक बेसिक मीटिंग कैसी होनी चाहिए हम सबको पता है। मैं जस्ट और थोड़ा सा मतलब, क्योंकि ये वीडियो मैंने आज से 3-4 साल पहले देखी, व्हेन आई जॉइंड वीसी, एंड दैट वाज द वन वीडियो फ्रॉम हार्ट, आई एम टेलिंग कनक जी, which impressed me, super impressed me today also। और ये मैं वीडियो चाहे दिखाऊं ना दिखाऊं, बट ये कंपनीज के नाम तो मैं बता ही देता हूं, करीब 50-60 इंडियन भी है और इंटरनेशनल भी है। चलो वीडियो देखते हैं आज। सर सुबह उठ के हम क्या करते हैं पूरे दिन में, और उसमें हम देवेंद्र स्क्रीन शेयर कीजिए, तो दूसरे स्क्रीन पे चला गया वीडियो। लिंक क्लिक करने के बाद आपको दूसरा स्क्रीन आएगा, एक टैब करिए, दूसरे स्क्रीन ओपन कीजिए। तो एक बार स्टॉप शेयर करके वापस दोबारा से उस पर जाके कर दीजिए, फिर स्टॉप शेयर करके इस पे आ जाना। सर ऑडिबल ना?
फिर मैं दिखा देता हूँ। आप प्रेजेंटेशन आ रही है, एसेट एलोकेशन करके जो स्क्रीन है आपका वो आ रहा है। ओके सर व्यू ऑप्शंस में जाकर कनक जी का ये देखिए तो उसमें आ रहा है। ओके वो जो अभी चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। लेट नॉट बी स्टक हियर। तो एसेट एलोकेशन सिंपली ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि एक एसेट क्लास का नेचुरल है, एक ही कलर होता है, एक ही फ्लेवर होता है और एक ही टेस्ट होगा। और नेचुरल है उसकी रिटर्न भी, उसकी रिटर्न जो है उसकी प्रॉपर्टीज के साथ हमेशा लिंक होंगी, जैसे इक्विटी की हाईली वॉलेटाइल, स्टॉक डेट की स्लो एंड स्टडी, इट्स 1 and 2% अबव सीपीआई, और इन्फ्लेशन जो जीडीपी रहती है उसके आसपास रहेगा हमेशा बॉन्ड की। और गोल्ड की अगेन इट कुड बी वॉलेटाइल, और फिक्स्ड डिपॉजिट तो बॉन्ड मार्केट ही है एक तरह से। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको स्पिरिचुअल वे में कंसिडर करते हैं कि 3 M's कौन से हैं। तो यहाँ पे एक मनी है, वो स्पिरिचुअल भी है और फिजिकल भी है। क्योंकि मनी क्या है, स्पिरिचुअल कैसे है, बड़ी अजीब सी बात मैंने बोल दी। लोग तो कहते हैं कि पैसा जो है वो दुख का सोर्स है, कहते हैं लोग कहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पैसा यदि सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ तो है ही। क्योंकि ये आपको एटलीस्ट कई ऐसी चीजों से शांति ला देता है, पैसे से कई चीजें ऐसी पूरी हो जाती हैं जो आपको मन की शांति दे सकती हैं। अगेन कमिंग टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है, मनी आती है मैथमेटिक्स से। और मैथमेटिक्स का जो दूसरा रूप है, जो हमने स्टूडियस जो लोग हैं वो समझते हैं कि इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, अर्थ और इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र, तो ये जो समझते हैं तो वो पैसे की तरफ इंक्लाइंड भी होते हैं, बट इसके साथ साथ मेडिटेशन भी जरूरी है। ओके एनीवेज चलते हैं हम। 3 फेसेस ऑफ वेल्थ क्या होती है। धन की 3 गति, लालच, डर और दुख। और मुझे लगता है ये तीनों ही गतियां नेगेटिव है। इसकी बजाय हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि की और फ्रीडम की। अगेन दिस इज ए प्रोफाइल ऑफ इक्विटी। और सर म्यूट कर लेंगे प्लीज। सो ये एक मॉडल पोर्टफोलियो है यहाँ पे, जो कि एज्ड बेस है कि हम एसेट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं। और ये एक ये बहुत सी आप गूगल भी करेंगे तो आपको ऐसे कोई थंब रूल वगैरह मिल जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एज बेस होना नहीं चाहिए। हम डिस्कस जरूर कर रहे हैं कि एज बेस करना चाहिए, और लोग इस प्रैक्टिस को एक्चुअल में बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। बैंकर्स और प्राइवेट वेल्थ इंस्टीट्यूशंस इस एसेट एलोकेशन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एआई मॉडल नहीं है, बट ये डेवलप जो मॉडल ऑफ पोर्टफोलियोज होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि सपोज वो कहते हैं यंग गाय है तो 20 साल का है या 20 से 30 का के बीच में है, तो उसको अगले 10 सालों के लिए 60 से 70% इक्विटी में होना चाहिए। ये एक मॉडल पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, इस तरह से इंटीग्रेशन कर देते हैं कि आपका इतना इक्विटी में जाना चाहिए। अभी हम विद इन इक्विटी एसेट क्लास की बात नहीं कर रहे, बट इक्विटी में 60 से 70% आपका होना चाहिए और 30 से 40% आपका डेट होना चाहिए। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है तो 50-50 आपका आ जाना चाहिए। देन जैसे जैसे आप सीनियर सिटीजन की तरफ जाते जाते हैं, आपकी गोल्डन एज नजदीक आने लग जाती है, तो आपको 30 से 40% अपना इक्विटी लेके आ जाना चाहिए और 60 से 70% आपको डेट आ जाना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आई डोंट फॉलो दिस मॉडल पोर्टफोलियो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये तय करना चाहिए कि आपके गोल कैसे हैं। आपके गोल इन केस यंग एज में मैं बात करता हूं कि इन केस कोई डॉक्टर है 20-25 साल का और उसका गोल है कि 30 साल में उसने अपना हॉस्पिटल खोलना है। राइट नाउ ही इज वर्किंग समवेयर इन सम हॉस्पिटल, बट 30 साल में उसने एक टारगेट लिया हुआ है कि मैंने अपना हॉस्पिटल खोलना ही खोलना है। तो क्या उसका 70% हम इक्विटी में डाल सकते हैं?
एट द एज ऑफ 25? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि वो उसका टारगेट फिक्स है, ऑलरेडी गोल फिक्स्ड है। तो इसमें जो चीज हम नहीं कंसिडर करते हैं वो है गोल। ये एज अकेली कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए इन आइसोलेशन, इसके साथ गोल जरूर कंसिडर करने चाहिए कि उस गोल का टेन्योर क्या है। अब अगेन मैं इसका बहुत ही उल्टी एक मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बात करता हूं कि 60 साल का एक पर्सन हु इज अल्ट्रा HNI और जो कि एक बिल्कुल हेल्दी है, 60 साल का है और वो अल्ट्रा HNI है, तो क्या उसका पैसा 70% डेट में होना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इट कुड बी रिवर्स अराउंड इन केस ही अंडरस्टैंड्स इक्विटी और उसकी नई जनरेशन को के साथ मीटिंग करके और उसके साथ मीटिंग करके उसको इक्विटी के रिस्क समझा के और हम ये पैसा लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी प्रैक्टिस ये बोलती है कि 60 साल वाले के पास ज्यादा टाइम होता है बजाय कि 20 ईयर्स और 30 ईयर्स से। मेरी ये करती है और इसको मैं प्रैक्टिकली फॉलो कर रहा हूं और इसने मेरी एसेट में बहुत ज्यादा AUM मेरा बहुत बड़ा है। दिस इज वन रीजन आई वांट टू टेल यू कि एसेट एलोकेशन इतनी ज्यादा आसान नहीं होती है। आप जब तक उसका रिस्क एनालिसिस नहीं करते, उसके गोल एनालिसिस नहीं करते और उसको एक्चुअल में उसका बिहेवियर एनालिसिस नहीं करते, उसको वॉलेटिलिटी एक्चुअल में नहीं समझाते, तब तक ये जो एसेट एलोकेशन आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अकेली मार्केट कंडीशंस कुछ भी नहीं करेंगी। मेन आपका जो रोल है, मेन हमारा जो रोल है, our foremost responsibility is to manage the behavior of investor. We cannot manage the market. We are only, हम यहां पे सिर्फ रिएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। अब आते हैं कि ये टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन क्या क्या होती हैं। दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग और इसमें कोई भी मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहता है तो वो जरूर कर सकता है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज है और ये आपके एक्चुअल में यही काम में आने वाली है सारी। तो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन क्या होती है? स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन वो है जो हमने अभी देखी, जो ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी है, वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन है कि हमने पहले से स्ट्रेटेजी बना ली, पहले से हमने स्ट्रेटेजी बना ली कि हमने इस एज क्लास को ये एसेट क्लास देनी है, इतना एसेट का मिक्स देना है। तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, जहां हम फिक्स कर देते हैं कि हमें यहाँ पे 20% देना है, इसको 70 देना है, इसको 10 देना है। लाइकवाइज हम एक 10% उसको कंटिजेंसी एसेट रख लेते हैं लिक्विड में या शॉर्ट टर्म डेट ओवरनाइट फंड्स वगैरह में, और उसको 20% दे देते हैं लॉन्ग टर्म डेट और उसको 70% दे देते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, और विद इन 70% हम उसको 40% दे देते हैं स्मॉल कैप, 20% दे देते हैं मिड कैप और 10% दे देते हैं लार्ज कैप। ये एक यंग इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूं। इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन मिक्स। देन कमिंग टू कांस्टेंट वेइंग एसेट एलोकेशन, ये क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी? ओके, मैं बताता हूं। इसमें हम प्रीफिक्स कर लेते हैं, पहले ही प्रीफिक्स कर लेते हैं। ये एक बहुत ही मॉडरेट रिस्क एपेटाइट वाला जो इन्वेस्टर होता है, बिल्कुल से मॉडरेट चलने वाला, तो वो सिंपली ये बताता है कि यार डीजी मेरी बात सुन, मैं सब कुछ समझ गया हूं, मैं तेरा ज्ञान पूरा मैंने सुन लिया है, बट आई सिंपली वांट कि मैं मिडल ऑफ द रोड प्लेयर हूं। मैंने हमेशा जो जिंदगी में सॉफ्ट कॉपी तो टिकट की मैं लेता ही लेता हूं, बट मैं हार्ड कॉपी भी लेके चलता हूं। एरोप्लेन में बिना हार्ड कॉपी टिकट की लिए मैं सफर नहीं करता हूं। तो इस जैसे लोगों को हमेशा कांस्टेंट वेटिंग एसेट एलोकेशन सूट भी करेगी कि उसको ब्यूटी ऑफ बोथ वर्ल्ड चाहिए। उसको आप 25%, मैं वैसे बता रहा हूं, 25% गोल्ड दे देते हो, 25% डेट दे देते हो,
25% उसको इक्विटी दे देते हो और 25% उसको रियल एस्टेट या REIT मींस रियल एस्टेट की किसी तरह से AIF वगैरह में इन्वेस्ट करवा देते हो। तो ये एक बहुत ही मिडल ऑफ द रोड प्लेयर की स्ट्रेटेजी है और ये उनके लिए बहुत कामयाब हो सकती है जो सिंपली दे आर वेरी हैप्पी विथ 10% काइंड ऑफ रिटर्न, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको 10% दे ही जाएगी। कॉन्स्टेंट वेटिंग एसेट एलोकेशन एंड बॉस बिलीव मी इट वर्क्स, ये वर्क कर जाती है। स्ट्रेटेजिक में आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल होना पड़ता है और उसका रिस्क बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है और विद द एज फैक्टर उसका रिस्क एनालिसिस रिव्यू करना पड़ता है, रीबैलेंस करना पड़ता है और वहां पे कहीं भी आप थोड़े से गलत भी हो सकते हो, बट कांस्टेंट में ऐसा कोई चांस नहीं है। अगेन कम इनटू टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन ये है कि जो कंडीशन के हिसाब से चेंज होती है। कौन सी कंडीशन? नॉट रिस्क एपेटाइट की वजह से, इन्वेस्टर की वजह से नहीं, ये जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक रिस्क, सिस्टेमेटिक रिस्क की वजह से चेंज होती है। मींस इन केस हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो दैट इज कॉल्ड अनसिस्टेमेटिक, और जो टेक्निकल की बात करें वो सिस्टेमेटिक रिस्क। सिस्टेमेटिक रिस्क क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हुए जो हम एसेट एलोकेशन करते हैं, दीज आर कॉल्ड टेक्टिकल एसेट एलोकेशन। इंटरनेशनल इक्विटी कैसे बिहेव करेगी, ठीक है, ये सिस्टमेटिक रिस्क है, बिकॉज इंटरनेशनल इक्विटी का जो भी असर होगा वो सबके ऊपर इट विल बी इक्वल ऑन ऑल द इन्वेस्टर, ऑल द ग्लोब। तो इसको हम टेक्टिकल एसेट एलोकेशन करते हैं कि जब आप एज्यूम करके कि अब रशिया यूक्रेन का लड़ाई हो रही है, मींस यूरोपियन मार्केट डाउन जाएगा और आप इंटरनेशनल इक्विटी से अपनी वेटेज कम कर लेते हैं, डोमेस्टिक में बढ़ा लेते हैं, और सिमिलरली आप फॉरेन करेंसी में भी चले जाते हैं, डॉलर में भी एसेट एलोकेशन बढ़ा देते हैं और आप गोल्ड में भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, क्योंकि ऐसी मार्केट कंडीशंस चेंज हुई और उसकी वजह से आपने अपनी टैक्टिक्स चेंज कर दी। देन कम्स इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन। इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन एक मैं आपको ले चलता हूं आज से 4-5 साल और प्रीवियस 7-8 साल। CPOF आते थे, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड, इन केस किसी को याद हो तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि 80% तो वो लगाते थे डेट में और 20% लगाते थे इक्विटी में। किस लिए? और उसका लॉक इन होता था, किसी का 5 साल, किसका 4 साल, किसका 3 साल, क्योंकि 3 साल में इन केस 8% रिटर्न भी आई तो आपका 80 वाला 100 पूरा हो जाएगा, जो 80 डेट है, और 20% विल बी द बोनस। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड। इट इज कॉल्ड इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन। बेसिकली दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन, कि आप वहां पे अपनी कैपिटल एक्चुअल में इंश्योर्ड कर रहे हैं कि मुझे इस एसेट क्लास से अपनी कैपिटल तो सेव करनी है, मैं सिर्फ मार्जिन पे प्ले करूंगा। और वो 20% में कई बार वो पहले अलाउड था, F&O में शायद वो प्ले करते थे, उनका रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं गया किसी का, क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत हाईएस्ट रिस्क ले लिया। मतलब मींस आई डोंट नो विच काइंड ऑफ इन्वेस्टर टेक दिस और विच काइंड ऑफ एडवाइजर इवन एडवाइज दिस, कि आप एक तरफ तो सेफेस्ट क्लास में आ रहे हो और एक तरफ हाईएस्ट रिस्क में जा रहे हो। मुझे लगता है कनक जी भी इस बात से सहमत होंगे इस चीज से कि इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन मतलब दिस काइंड ऑफ बिहेवियर समथिंग वेरी, हाँ ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ये मैं बता भी सकता हूँ किस अल्ट्रा HNI जो अपने एसेट के ऊपर वो रख के, क्योंकि जो उनकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, AOA एंड MOA होता है, तो उसमें एक फिक्स अमाउंट होती है कि आपको इस अमाउंट पे डेट में या बॉन्ड में या सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में रखना ही रखना है। उनके लिए ये फंड बेनिफिट हो सकता है, ये स्ट्रेटेजी, ये पोर्टफोलियो कामयाब हो सकता है। देन कमिंग टू अदर एसेट एलोकेशन, और अदर एसेट एलोकेशन जो है वो क्या होती है? अगेन ये अदर एसेट एलोकेशन में कुछ भी आप ले सकते हैं, AIF,
PMS, अब तो PMS की स्ट्रेटेजी अलग से आने लग गई है, AIF की बहुत अलग से आने चाहिए, REET जो IT जो शुरू हुए हैं, तो ये सब अदर एसेट एलोकेशन में आ जाते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे जो 6 क्लासेस दी हुई हैं एसेट एलोकेशन की, ये जब तक आप इन्वेस्टर का बिहेवियर डीपली स्टडी नहीं करते तब तक आप इसमें सक्सेसफुल एक्चुअल में नहीं हो सकते। और इन केस आपको डीपली बिहेवियर स्टडी ना करना हो तो स्टिक टू दैट फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड कांस्टेंट, उसके बाद वाला कुछ भी ना करो। मैंने एक स्किप कर दिया बीच में, डायनेमिक एसेट एलोकेशन। डायनेमिक एसेट एलोकेशन बेसिकली वो है जहां पे हम लोग खुद या फंड मैनेजर, व्हेन वी टॉक अबाउट अवरसेल्फ देन वी आर पार्ट ऑफ फंड मैनेजर आल्सो बिकॉज वी आर इन्वेस्टमेंट प्लानर। तो जब हम एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन करते हैं उसके फंड में, उसको बताते हुए, और ये ऑटोमेटिक अगेन मॉडल पोर्टफोलियो के द्वारा ही किया जाता है, इसमें किसी भी तरह की इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट डायनेमिक में इन्वॉल्व नहीं होती है। उससे पहले ही अप्रूवल ले ली जाती है कि सर हम इस फंड में जा रहे हैं जहां पे वो मोमेंटम बेस्ड या आपकी जो सर बहुत रिकमेंड करते हैं मार्केट रेशियो GDP एंड मार्केट वैल्यूएशन के बेस पे जो सर ने पोर्टफोलियो डेवलप किया है, तो इस सभी जो पोर्टफोलियोज को हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन बोलते हैं। तो इसमें अब ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं कि PDC क्या है। इसमें नेचुरल है, ये पोस्ट डेटेड चेक्स नहीं है, वो तो मेरे ख्याल से 2010 से पहले हम लेते होते थे 36 चेक, किसी की SIP लगानी होती थी तो हम भरते थे और उसमें आमतौर पे डेट में गलतियां हो जाती थी। पहले तो SIP के लिए एक महीना मिनिमम वेट करना पड़ता था क्योंकि उसकी चेकबुक आती थी। 36 पेज तो हमें चाहिए होते थे कम से कम, 36 के बिना चेक नहीं लगते थे। तो वो PDC लेके, और जो मेरे यंग जो अभी इन्वेस्टमेंट प्लानर बैठे हैं, MFDs बैठे हैं, शायद उनको वो इरा नहीं याद होगा, बट कई लोगों को यहाँ पे 70% और मोर देन 70% उनको याद होगा कि जब हम एक इन्वेलप भी आता था कंपनी से हमें मिलता था, और उस वाटरप्रूफ इन्वेलप में 36 चेक डाल के, और सोच के देखो अगले 36 महीने की डेट्स भरना कितना मुश्किल होता था। और वो जमाना हमने देखा है SIP का। उसके बाद फिर ऑटो डेबिट शुरू हुआ, उसके बाद फिर नैश शुरू हुआ, और उसके बाद फिर OTM शुरू हुआ, और अभी तो और भी फैसिलिटीज। तो एनीवेज वी कमिंग अगेन टू PDC, प्योरिटी, डिसीजन एंड करेज। किसके लिए? ये एसेट एलोकेशन के लिए। कि आप एसेट एलोकेशन के लिए आपको प्योरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। सबसे पहले आपको प्योरिटी ये है प्लानर के लिए, इट इज नॉट फॉर इन्वेस्टर। आपके अंदर प्योरिटी कितनी है? आप कहीं भी किसी भी तरह से बायस तो नहीं है, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बायसनेस तो नहीं है आपके अंदर। तो वो प्योरिटी, या इसको बोलते हैं हम सैनिटी, कि सैनिटी है आपके अंदर, इतना आप सेंसिटाइज ऑलरेडी हो चुके हो। उसके बाद डिसीजन। डिसीजन कभी भी इमोशनल नहीं हो सकता। यू शुड नॉट मैरी टू एनी फंड हाउस, एनी स्कीम, एनी कंपनी और एनी स्टॉक। तो वो डिसीजन में आप कितने फर्म है, कितने रिजिड है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक फर्म फ्रेमवर्क बना लिया है किसी इन्वेस्टर का। किसी भी आप एलोकेशन में जा रहे हैं, आइदर इट इज स्ट्रेटेजिक, कांस्टेंट वेट है, या डायनेमिक। तो स्ट्रेटेजिक में और दूसरा जो ये सी दिस स्ट्रेटेजिक एंड टेक्टिकल, इनमें आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ये बहुत फर्म चाहिए। बाकियों में डिसीजन मेकिंग नहीं चाहिए, बट इन दोनों में आपकी डिसीजन मेकिंग एब्सोल्यूट चाहिए, और वो आपकी रिटर्न क्लियर होनी चाहिए, और वो इन्वेस्टर के साथ शेयर्ड भी होनी चाहिए, सो दैट ही शुड बी स्टेक होल्डर ऑफ योर डिसीजन। बताते हुए होनी चाहिए कि आप इन केस एसेट क्लास शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, स्कीम शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या था, आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म विजन क्या है उस स्कीम के बारे में, दैट्स वाई आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं। और डिसीजन हमेशा गोल बेस्ड प्लानिंग के साथ ही हो सकता है, अदरवाइज डिसीजन नहीं हो सकता। डिसीजन ये नहीं हो सकता कि मींस किसी भी तरह से बायस नहीं होना चाहिए। ये अगेन कमिंग टू करेज, और ये करेज जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिसीजन है, क्योंकि डिसीजन लेना विदाउट करेज डिसीजन नहीं हो सकता। करेज किस चीज का? टू बियर द लॉस।
क्योंकि करेज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वर्ड है एक, कि करेज ये होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टर को ये पता है कि इसमें शॉर्ट टर्म लॉस कितना, इन केस यू आर शिफ्टिंग द ऑल द पोर्टफोलियो टू इक्विटी एंड ही इज टारगेटिंग ओनली 3 years। जो भी आपकी डिस्कशन हुई हो, बट क्या आपके वो करेज है कि आप उसको पूरे के पूरे को लार्ज कैप या मिड कैप या मिक्स में डाल रहे हो? तो करेज भी होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। एक्चुअल में अब ये तो सब बातें होगी, बट करना क्या है भाई? कैसे इस समुंदर से, ये लहरों से, ये हाई टाइड से नेविगेट कैसे करना है? और जो बेनिफिट आ रहे हैं, मींस एक बहुत फास्ट बॉलर है, आजकल आईपीएल का सीजन है, फास्ट बॉलर है और शुरू के 2-3 ओवर्स हैं, तो एक जो बैट्समैन है उसके लिए सबसे अच्छा क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है इन केस ही वांट्स टू स्कोर 100? सबसे पहली उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इन केस 150 की स्पीड से सामने से बॉल आ रही है तो उसको एज पे खेलना चाहिए, उसको सामने से शॉट नहीं मारनी चाहिए। ये मेरी सोच है, क्योंकि ऑलरेडी 150 की स्पीड से बॉल आ रही है, आपने उसको सिर्फ दिशा देनी है, आपने उसको गति नहीं देनी, गति ऑलरेडी उसमें है, आपने सिर्फ उसको एक एज देनी है। तो आप उस हाई टाइड से बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? 150 की स्पीड की बॉल से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? डेफिनेटली उसके उल्टा मार के तो नहीं ले सकते, क्योंकि आपने लंबे चलना है, यू आर ए लॉन्ग टर्म प्लेयर। तो नाउ कम्स टू प्ले द वॉलेटिलिटी गेम, और ये हमारी जो वॉलेटिलिटी गेम है, इतनी शानदार गेम बनाई है सर ने, और मुझे लगता है कि पिछले 5-6-10 सालों में इसमें कई अपग्रेडेड वर्जन भी हैं। सर ने इतने फीडबैक्स लेके इसको और मॉडिफाई और डिफाइन और इसमें डाटा डाला है और वो सब किए हैं। अब सर कनक जी, यूट्यूब तो चला नहीं था, तो ये कैसे चलेगा आप देखिए, अब इसमें मुझे आपकी हेल्प की जरूरत कह है। सकते हैं कि वी कैन प्ले दिस ऑनलाइन इवन, ठीक है? यस, तो ये एक्चुअली सारे के सारे लोग जो आप लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे, क्योंकि अभी समय ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, आप एक बार स्क्रीन बंद कर दीजिए। यस, Okay, this is something which all of you can play on this volatilitygame.com website. But this is a single player. जब हम लोग workshops में, when we do this, then this is done in a different format. But today we are doing it like this. So basically, you just write your name like this. So when we start the game, I hope you all can see the screen now. Yes, no, you can just write it in the chat box. Yes, sir. Yes, we can. Simply, while all of you are playing, the first thing what you do is, this is a game of 1 year each. हर राउंड एक साल का होता है, और इसके अंदर में जैसे ही हम लोग प्ले दबाते हैं, सामने आते हैं, एंड देन एक्चुअली यू कैन एलोकेट, जैसा अभी देवेंद्र ने कहा, तो वी आर पुटिंग इट 25, 25, 25, 25 into 4 different asset classes, which is debt, equity, gold, and international equity. For this game, we are keeping debt at 6%, and in every year you are going to get 10 lakh rupees. So हर साल 10 लाख रुपए आएगा. If you are paying for 10 rounds, then 10 years, 1 crore will be invested. If you are playing for 5 years, then it is 50 lakh invested. We will just see how relaxing and how it's a no-brainer, but very, very less stressful, if we do asset allocation. So let's invest and see kya hota hai. The single player is there on the website. You can play like 10 lakh was invested. So out of this 10 lakh, Nasdaq gave return of 2%, Nifty gave minus 15%, gold gave minus 3%, and debt gave 6%. So this was in the year January 2015 to January 2016. Okay, which means आपका 10 लाख रुपया has become 9,74,000 एक साल के, ठीक है?
अगर सिर्फ पूरा नैस्डैक में किया होता या डेट में किया होता तो अच्छा होता, बट वो तो मालूम नहीं है ना, जैसा अभी देवेंद्र ने बोला, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो लेट्स प्ले द नेक्स्ट राउंड अगेन। See, figures are coming. Nasdaq, this was last month. This has gone down. Gold भी थोड़ा बढ़ गया है. Nifty has also gone up. So something is happening somewhere. Let's keep the allocation same. If you want, you can keep it different also. Maybe 20% gold or 20% debt or 10% debt as you wish. But let's invest and see how things are actually moving. See, in this round again, what has happened? Nasdaq is less than 1%, Nifty is negative, gold is 27%, and debt is 6%. So इस साल gold has done well. This is 2018 to 2019. और आपका 10 plus 10, 20 lakh is now 21 lakh 13,000. How is this happening? At the end of every year, जो भी asset class ज्यादा हो गया है, वहां से you transfer the money to the asset class जो डाउन हुआ है. अगर इक्विटी ज्यादा हो गया है तो यू पुट इट इनटू डेट, और अगर इक्विटी कम है तो डेट से आपने इक्विटी में डाला और सबको वापस बराबर कर दिया. दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर गेम इज ऑल अबाउट. लेट्स प्ले द थर्ड राउंड. थर्ड year 36 lakhs in 2005 का डेटा है ये. For 1 year it has become 36 lakhs. Nifty gave 40%, gold gave 21, Nasdaq is 6%, debt is 6%. So this way we have played 3 rounds. आप लोग अपने आप इस गेम को you can go to the website and play, and बाकी I think Devendra you can continue from here again, or do you want Yes. to play one more round? Or it is fine? No, not at all, sir. I think I'm stopping. Over to you again. so. Thank you very much, sir. Thank you very much. Again, this is basically trying to tell that what can cost you in the delay in investing. See, these all things we generally discuss with each and every investor. कई बार लोगों को हम फॉलो अप कर रहे होते हैं, कोई किसी भी तरह की रेफरेंस है, एंड वी आर फॉलोइंग देम, और हम उनको कई बार फोन पे या मिलते ही जैसे ही वो इस तरह से कई बातें होती हैं कि सर अभी ये नहीं है, अभी ऐसा नहीं चल रहा, अभी तो बहुत मंदा है. नॉर्थ इंडिया में आमतौर पे ये बातें बहुत चल रही हैं आजकल की, सर अभी तो बहुत ज्यादा स्लम्प आया हुआ है, चीजें पता नहीं, गवर्नमेंट डेटा दिखा रही है कि 2 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी इकट्ठा हो रहा है, बट आई डोंट बिलीव दीज नंबर्स, और मे बी दीज नंबर्स आर ड्यू टू इन्फ्लेशन ओनली, बट अदरवाइज तो सभी जो बिजनेस है बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं. तो उनको हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऑल राइट, ओके, सब कुछ ठीक है, बट आप जो नेसेसिटी है, ये इन्वेस्टमेंट इज योर नेसेसिटी नाउ इट इज, इट इज नॉट लग्जरी. ये ऐसा नहीं है कि आप आज नहीं तो बाद में कर लोगे. तो रिटायरमेंट कॉर्पस जिसने अपने सही समय से उसने स्टार्ट किया, तो उसका क्या हाल है और अभी का क्या हाल है, ये देखो आप. कि एक अशोक कुमार जी हैं, तो उन्होंने 25 साल के लिए इन्वेस्ट किया. जब वो 25 साल के थे तब उन्होंने इन्वेस्ट किया, और कब तक किया? जब तक वो 35 साल के हुए, बस. मतलब अपने बहुत ही यंग एज में उन्होंने इन्वेस्ट किया. 15,000 रुपये महीना, सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया. बट क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी कि ये रिटायरमेंट कॉर्पस है, तो आप उसको टच नहीं करोगे. आपने करना इन्वेस्टमेंट 10 साल है, और उसके बाद आप उसको यूज करोगे 60 साल में जाके. तो वो जो 15,000 रुपये पर मंथ है, वो सिप ने उनको जो भी जनरेट किया 35 साल तक, उसके बाद वो लमसम पैसा जनरेट करता रहा, और वो बन गया जाके 7 करोड़ रुपए जब उनकी रिटायरमेंट आई. और रिटायरमेंट के टाइम वो बहुत आराम से, इससे SWP जैसा मेरे फ्रेंड ने भी बताया था परसों, तो वो बहुत आराम से SWP के थ्रू वहां से 50 पैसे, या मीन्स जो एक अच्छा जो कॉर्पस है, तो उससे हमें एनुअल 9% से ज्यादा विड्रॉल नहीं करना चाहिए, 8 to 9% स्टिक करना चाहिए. तो आपका कॉर्पस वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जो रिमेनिंग कैपिटल है, और उसको इक्विटी में ही लगा रहने दो, या बैलेंस में भी आ जाओ,
बैलेंस में है तो फिर आपको 7% पे लेके आना पड़ेगा। इक्विटी में है तो 8 से 9% का भी विड्रॉल कर सकते हो, बट लेट वी शुड कीप इट टू बैलेंस, जैसे मैं परसों भी डिस्कस हुआ था। तो वो आप करके SWP से 60 साल के बाद अपना टिल रिमेनिंग योर लाइफ आप पूरा पैसा एंजॉय कर सकते हो SWP के थ्रू, और उसके बाद बीक्वेस्ट मनी छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास 7 CR आ गया है, और 7 CR में इन केस आप उसका 8% भी पकड़े तो इट बिकम्स 56 लाख। 56 लाख को आप 12 ईयर्स में इन केस डिवाइड कर दें तो आपको करीब 5 लाख रुपए मंथली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और एक मींस एक सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख इज गुड अमाउंट उस समय, क्योंकि आज को एज्यूम कर लें कि अभी से 25 साल एज्यूम कर लें तो आज जो 1 से 1.5 लाख की वैल्यू है वो उस समय 5 लाख की वैल्यू होगी। इन्फ्लेशन रेट 7% कंसिडर कर लें तो 5 लाख इज गुड अमाउंट एक हस्बैंड वाइफ के लिए एज्ड। बट एक पर्सन ने क्या किया कि जो किशोर कुमार जी थे, क्योंकि वो गाने में बहुत ज्यादा बिजी थे, तो उन्होंने कहा नहीं अभी मेरी जो स्ट्रगलिंग एज चल रही है और मेरी इनकम थोड़ा सा कम है, मुझे प्रॉपर डिब्यूट नहीं मिला है, प्रॉपर गाने के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो मैं 35 साल के बाद मैं शुरू करूंगा। और वो भाई साहब ने 35 साल के बाद किशोर दाने शुरू किया और उन्होंने 25 साल SIP चलाई, 15,000 ही चलाई, और उनकी रिटर्न कितनी आई? सिर्फ 3 करोड़। और वो इस हिसाब से एक महीने के 2 लाख रुपए या 2.5 लाख ही निकाल सकते हैं, जो कि आज के जो आपकी हाल 50,000 रुपए का है वो 2-2.5 लाख का होगा उस समय। तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ। रेट ऑफ रिटर्न तो हमने सेम एज्यूम किए और हमने अमाउंट ऑफ सिप भी सेम एज्यूम की है, और इवन टेन्योर भी सिप का जो किशोर दा है उन्होंने ज्यादा लिया, अशोक कुमार जी ने जो ऐसे करते थे अशोक कुमार जी उन्होंने कम लिया है टेन्योर, बट किशोर दा ने ज्यादा लिया है, क्योंकि जो हमने एक्चुअल में 9th और 10th क्लास में सीखा था उस समय शायद इसका मतलब नहीं समझ में आया था हमें। रेस टू पावर जो होता है उसके हाथ में एक्चुअल में पावर होती है। हम बोलते थे रेस टू पावर, तो रेस टू पावर क्या होता है? दैट इज T। एक अमाउंट में प्रिंसिपल देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इन्फ्लेशन या रेट ऑफ रिटर्न इतना मेजर रोल प्ले नहीं करता जितना रेस टू पावर T करता है। रिटर्न वो सेम, ठीक है, टाइम ने सारा फैक्टर प्ले किया कि उस इन्वेस्टमेंट को, उस कॉर्पस को कंपाउंड होने में कितना टाइम मिल गया, तो उसको कंपाउंड होने के लिए मिल गया 25 साल। सी again coming to that rich dad and poor dad, the basic bible of every investor और even every financial planner को भी ये सबसे पहली किताब है जो एक्चुअल में पढ़नी चाहिए। ये आपके अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल्स लेके आएगी और आप एक्चुअल में इक्विटीज से कैसे अर्न कर सकते हैं और उसके बाद अर्न कैसे करवा सकते हैं वो आपको बताएगी। बिकॉज इन केस आपके पास एक जॉब है तो आप एक्चुअल में डिसीजन मेकर नहीं है, आप एक एम्प्लॉई है। और उसके बाद इन केस आप एक बिजनेस ओनर बन जाते हैं तो आपके पास एक अपना सिस्टम है, आपके पास अपनी एक डिसीजन मेकिंग पावर है, आपके पास एक लिबर्टी है, डिसीजन लेने की लिबर्टी है, टाइमिंग की और लिबर्टी है, काम करने की और एक्सपेंशन करने की लिबर्टी है, लिबर्टी है क्रेडिट लेने की, क्योंकि वो क्रेडिट आपसे और कोई नहीं लेके जा सकता। एंड देन इन केस आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड मींस एक्चुअल में एक आप जॉब कर रहे हैं बट आपकी टाइमिंग फिक्स है, दैट इज बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड। कि आप बिजनेस तो अपना कर रहे हैं बट एक्चुअल में आप एम्प्लॉयड है क्योंकि आपकी टाइमिंग फिक्स है। बिजनेसमैन जो होता है, जो एक करियाना स्टोर वाला है, तो आप उसको एक्चुअल में क्या कहते हो? एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड। मेरी डेफिनेशन में वो सेल्फ एम्प्लॉयड है बिकॉज उसका सब कुछ फिक्स है, वो अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकता है, एक्चुअली नहीं कर सकता। उसको सुबह 9 बजे शटर ओपन करना ही पड़ेगा, दैट इज व्हाई ही और शी इज सेल्फ एम्प्लॉयड। बट एंटरप्रेन्योर जो एक
एक लोगों को मैनेज करके काम करवा रहे हैं, एक अपनी कैपिटल उन्होंने एम्प्लॉय की हुई है और उनके अंडर काफी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर आते हैं। देन द फोर्थ कैटेगरी कम्स, विच इज माय फेवरेट कैटेगरी, एंड आई वांट टू बिकम दिस आल्सो, और मुझे लगता है मैं हूं भी। इट इज इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, बिलीव मी, दिस वर्क्स। जब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है, आप अपनी कहीं भी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो, आप ऑनलाइन जूम मीटिंग में काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, F की प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप कहीं भी घूमने गए हो, दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे हो, या आप किसी फैमिली फंक्शन में गए हो, बट आपकी इन केस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है, तो वो पैसा आपको अपनी मार्केट रिटर्न्स लेके आएगा। एंड बिलीव मी, इट डेफिनेटली वर्क्स। तो ट्राई टू क्रिएट मोर एंड मोर इन्वेस्टर, और एक सेवर और इन्वेस्टर से बनाना, सेवर को इन्वेस्टर बनाना FFF फेटर्निटी का पहला कर्तव्य है। यहाँ पे सभी लोग जो हम बैठे हुए हैं, वी आर 250 ऑड पीपल ओवर हियर विच आर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, इट डजंट मैटर, बट हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों में पहले तो हैबिट बनानी है सेविंग की, और सेविंग के बाद उसको हैबिट बनानी है इन्वेस्टमेंट की। बीच में ट्रेडिंग हमने मिस करवाना है, बिकॉज हमने उसको ये नॉलेज देने की कोशिश करनी है कि ट्रेडिंग तो आप ऑलरेडी अपने बिजनेस में कर ही रहे हो, ऑलरेडी आप बाय लो सेल हाई तो कर ही रहे हो। कौन बिजनेसमैन ट्रेडिंग नहीं कर रहा? सब बिजनेसमैन ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। तो ट्रेडर तो वो एक्चुअल में है। देन व्हाई टू डू ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग उनको करनी चाहिए जो फुल टाइम ट्रेडर है। स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम ट्रेडर हमेशा लॉस में जाता है, स्टॉक मार्केट में भी इवन। तो पार्ट टाइम ट्रेडर आप कहां पे कर सकते हो? अपने बिजनेस में, जहां पे आपकी प्रोफिशिएंसी है। सेवर से इन्वेस्टर बनाना हमारा फर्ज है। जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि हमारा स्कीम सिलेक्शन फर्ज है, हमारा बैलेंसिंग फर्ज है, हमारा जो पहला फर्ज है सेविंग की हैबिट डालना, उसके बाद सेविंग को इन्वेस्टमेंट में लेके आना, उसके बिहेवियर को मैनेज करना, ये हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है FFF की। ऑल राइट, तो वेल्थ क्रिएशन कैसे हुई है? डिफरेंट सिनेरियोज में, और जहां पे रेट ऑफ रिटर्न्स क्या थी, मुझे लगता है ये सभी को पता है। इसमें सिर्फ हाईलाइट करने वाली क्या चीज है कि जैसे ही आप टाइम बढ़ा देते हैं, जब आप टाइम बढ़ा देते हैं तब आपको मैक्सिमम रिटर्न आती है। रेट ऑफ रिटर्न से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना टाइम से फर्क पड़ता है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जैसे ही कंपाउंडिंग हो जाती है तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स में ह्यूज गैप आ जाता है। 20 साल में, 20 साल का हम कंसिडर करें तो रेट ऑफ रिटर्न 8 से 10%, 2% में 8 से 15% डबल रिटर्न्स में सिंपली 60 लाख वाली चीज जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गई है। फर्क देखिए, वहां पे रिटर्न्स में डबल का फर्क है, बट रिटर्न जो टाइम की वजह से उसमें 2.5 गुना का फर्क पड़ गया, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाती है। और हम अगेन बेसिकली एसेट एलोकेशन क्यों करते हैं? एसेट एलोकेशन इसलिए करते हैं कि पीस ऑफ माइंड चाहिए। किसकी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। पीस ऑफ माइंड, एसेट एलोकेशन, पीस ऑफ माइंड सबसे पहले किसकी है? हमारी और इन्वेस्टर दोनों की। प्राइमरी हमारी, प्राइमरी हमारी, क्योंकि हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। एक बात बताइए, एक गाड़ी का ड्राइवर पीसफुल नहीं होगा तो क्या वो अपनी गाड़ी को, एरोप्लेन को, जहाज को, बस को सही डेस्टिनेशन, कंफर्टेबल पोजीशन पे लेके जा सकता है? नहीं। दैट इज वाई आपने देखा होगा जो अच्छी बसेस होती हैं या इवन मेट्रोज होती हैं या रेलवे है, उन सब में जो पायलट के जो केबिन्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, सो दैट उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ट्रेवलर्स की, इसी तरह से जो आप सारथी हो, आपके रथ में आपके इन्वेस्टर्स बैठे हैं, इन केस आप खुद ही काम नहीं हो, पीसफुल नहीं हो, तो आप उनको कहां पे लेके जाओगे? ये तो मुझे नहीं पता कहां लेके जा सकते हो।
तो पीस ऑफ माइंड सबसे पहले तो एडवाइजर्स की कैसे हो सकती है? जब वो उसकी मीटिंग प्रॉपर हो, होमवर्क पूरा हो, प्री बोर्डिंग मीटिंग होनी चाहिए। आपको प्री बोर्डिंग कम से कम 3 से 4 मीटिंग होनी चाहिए उसका रिस्क एनालाइज करने के लिए। वो हो सकता है जल्दबाजी करे, इन्वेस्टर हो सकता है आपको बोले कि सर ये चीजें मैं समझता हूं, आप तो सिंपली स्कीम बताओ किसमें पैसा लगाना है, मैंने 50,000 की सिर्फ आज ही स्टार्ट करनी है। बिलीव मी सर, एक मीटिंग और लो और उसको आधा घंटा 1 घंटा और कोचिंग दो। क्योंकि वो कैसे समझता है, या तो उसने समझा है यूट्यूब से, या उसने किसी डिफरेंट एडवाइजर से समझा है, या किसी बैंकर से समझा है, या किसी पड़ोसी से समझा है, नियर रिलेटिव से समझा है। आपकी जो एसेट एलोकेशन का तरीका है वो आप ही उसे समझाओगे और आप उससे समझोगे भी कि उसका रिस्क एनालिसिस क्या है। एक क्वालिफाइड एडवाइजर में और एक नॉर्मल एडवाइजर में बहुत फर्क होता है। आप एजेंट हो, आप पोर्टफोलियो मैनेजर हो, आप एमएफडी हो, आप एडवाइजर हो, कि आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो, इन सब की थॉट प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सच्चाई है, सभी को पता है, ये सच्चाई है। चाहे हम काम सेम कर रहे हैं, बट आपकी लर्निंग, आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपका बिहेवियर एनालिसिस को ऑब्जर्व करने का तरीका आपके पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस कर सकता है। और आपकी साइमल्टेनियसली आपकी जो रिटर्न है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है आपके इन्वेस्टर की। तो एक इन्वेस्टर को रिटर्न की सीढ़ियां चढ़ाना, इन्वेस्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ाना, वो आपका फर्ज है। उसके लिए हैंड होल्डिंग जरूरी होती है। और हैंड होल्डिंग टफ मार्केट में, स्मूथ मार्केट में सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है यदि आपने उसका बिहेवियर एनालिसिस किया है, अदरवाइज नहीं हो सकती। और बिहेवियर एनालाइज करने के लिए फोन पे बात करनी नहीं है। कोविड का टाइम गया, मिलना पड़ेगा। 3 से 4 मीटिंग प्री बोर्डिंग, 4 से 5 मीटिंग मस्ट है सर, मस्ट है। मैं जरूर करता हूं ये। डाइवर्सिफिकेशन तभी हो सकती है जब आप उसका बिहेवियर एनालाइज कर पाओ। और पीस ऑफ माइंड और डाइवर्सिफिकेशन लीड्स टू वेल्थ क्रिएशन। रत्नेश जी ने 100 करोड़ रुपए 15 साल में उनको देना है। ऑल राइट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इवन डेटा थोड़ा सा पुराना है बट वेरी इंटरेस्टिंग। इसको आप ऐसे समझिए कि ये पीरियड 1 2 3 है और इसमें इक्विटी और डेट का क्या क्या रेशो रहा है और उसकी जो एलोकेशंस है वो उसने क्या रिटर्न्स दिए हैं। देखिए, किसी की यदि 18% मींस इक्विटी की रिटर्न आई है पिछले 20 सालों में 18% सपोज, ठीक है, और डेट की आई है 10%, तो एक पीरियड है, मतलब पर्सन है और उसने सेम पूरा पूरा पीरियड उठा ले, इन केस पिछले 20 साल ले लें, 2020 की ये स्लाइड है, 80-20 की, मींस 80 इज इक्विटी एंड 20 इज डेट। अब ये क्या आ गया? कांस्टेंट पोर्टफोलियो। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पोर्टफोलियो, कांस्टेंट एसेट मिक्स। तो उसने हाईएस्ट रिटर्न दी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कांस्टेंट एलोकेशन है वो कामयाब है। फिर भी अब वो उसने रिस्क एपेटाइट कितना है वो एक अलग है, बट कॉन्स्टेंटली हमने 80% उसको इक्विटी दे दी और 20% डेट दे दिया, उसका बिहेवियर समझ के, उसके गोल प्लानिंग करके, तो उसको रिटर्न गई है 17% पिछले 20 सालों में। और दूसरी तरफ आते हैं कि मान लो हमने उसको 50-50 दिया है, तो अगेन ही इज द मिडल रोड प्लेयर और उसको जो रिटर्न आई है वो 14.5% फिर भी आई है। और 14.5% रिटर्न पिछले 20 सालों में, बिलीव मी इट इज फिनोमिनल रिटर्न। क्योंकि सेंसेक्स की भी जो CAGR है पिछले 20 सालों की, एक्चुअल में ये 14 और 14.5% ही है। तो इवन आपने 50-50% में भी CAGR यदि उसको 14.5% निकाल के दे दी है, तो आपने एक्चुअल में तो 100% इक्विटी की उसको रिटर्न दी है, तो वाई टू टेक सो मच रिस्क। तो इस कहीं भी 80-20 से लेके 50-50 तक हम कहीं भी एलोकेट कर सकते हैं। बाकी उसका रिस्क प्रोफाइल है, इन केस वो बिल्कुल से रिस्क लेना नहीं चाहता और उसके बहुत ही नियर टर्म गोल है, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, उसको आपको डेट से ऊपर नहीं लेके आना चाहिए, चाहे वो 20 साल का भी इन्वेस्टर हो। वो जो थ्योरी है
वो काम नहीं करती है कि 20 साल का इन्वेस्टर है तो 70% इक्विटी लेके ही आना है। इन केस उसका गोल नियर टर्म है, नियर टर्म मतलब 3 साल है, और उसकी रिस्क एपेटाइट ऑलमोस्ट जीरो है, वो कहता जी मेरे घर वाले बहुत ही खराब टाइम से निकल के आए हैं, मेरी नई नई जॉब लगी है, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, और मैंने 3 साल में इतना वेल्थ एकुमुलेट करनी है, तो आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो उसको डेट में ही रखना चाहिए। बेट आप गोल्ड दे सकते हैं, गोल्ड और डेट के अलावा उसको कुछ ना दीजिए। एज वाला फंडामेंटल फॉलो ऐसे ब्लाइंडली नहीं करना। ठीक है सर। अगेन तो ये टैक्सेशन है, ये मुझे लगता है सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि ये डिस्कस करने की जरूरत है। और उसके बाद आते हैं, ये भी थोड़ा सा चेंज हो गई है, तो आते हैं। सही है। कोई भी एक स्ट्रेटेजी सबके लिए काम नहीं करती है, ये याद रखना। We can skip this video. साउंड नहीं दिया आपने इसमें। All right. Now here comes the interactive session. Queries. I welcome all my friends. जिनको ये जैसा भी लगा प्लीज फीडबैक भी दो। दिस इज माय फर्स्ट मास्टर स्ट्रोक क्लासरूम आई हैव एवर गिवन, और सर की मोटिवेशन है। सर की मोटिवेशन से तो वैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, एक्चुअल में सभी साथ, सभी को मोटिवेशन है। एंड 24/7 जो कनक सर की सपोर्ट है, उसकी वजह से ये जो पीछे आप अवार्ड देख रहे हैं, ये सिर्फ और सर आपकी वजह से ही है। बिलीव मी, इट इज बिकॉज ऑफ यू ओनली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज क्वेरीज आर वेलकम। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हम डिस्कस करना चाहें हम कर सकते हैं, फोरम खुला है। रत्नेश जी नमस्कार। तो एसेट जी ESD दारूवाला बोल हेलो। रहा हूँ नागपुर से सर। सर प्लीज हाँ जी। एक मिनट मैं बिगर विंडो खोल लूं एक बार। हाँ जी सर बताएंगे। हाँ जी, वो जो एलोकेशन है, जो सेकंड वाला जो आपने बताया था कांस्टेंट वाला, उसके अंदर अगर इक्विटीज जैसे बड़ी हो जाती है या बढ़ जाती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डेट बढ़ जाती है, तो फिर हाँ। बाद में हर बार शिफ्ट करते रहना है। नहीं 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 सर, वो ये सी एक्चुअल में क्या है इनमें जो फाइन लाइन डिफरेंस है ना सर, वो फाइन लाइन डिफरेंस ही इनकी जो एसेट एलोकेशन की जो हमने कैटेगरीज डिस्कस की हैं, उनमें सिर्फ फाइन लाइन डिफरेंस ही है, फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है उनमें। फाइन लाइन डिफरेंस है। जैसे आपने वो डिफरेंस खत्म कर दिया तो वो तो फंडामेंटली वो डिफरेंस होगी, मतलब वो अलग ही होगी वो। अब कांस्टेंट एलोकेशन की मैं बात करता हूं। कांस्टेंट एलोकेशन में आप गेम को थोड़ा सा अभी भूल जाइए जो कनक सर ने बताई थी। कांस्टेंट एलोकेशन में आपने फिक्स कर दिया। फिक्स मतलब फिक्स, जैसे कांस्टेंट एलोकेशन जो मैंने लास्ट आपको स्लाइड दिखाई है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट एलोकेशन, कि आपने पिछले 20 सालों में उसका 80% इक्विटी में डाल दिया और 20% डेट में डाल दिया। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट एलोकेशन। हमने कभी उसको रीबैलेंस नहीं किया। नहीं मतलब डाल के फिर छोड़ दिया। यस रीबैलेंस बिल्कुल नहीं किया है सर। जिसको हम रीबैलेंस कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड डायनेमिक एसेट एलोकेशन। ओके। क्योंकि उसमें हम रीबैलेंस कर रहे हैं। अब समझिए ना सर, क्या शुभ नाम है आपका? ESD दारूवाला सर। आपका नाम नहीं आ रहा है इसलिए। ओके। तो जब हम डायनेमिक करते हैं, मतलब हम जब उसको रीबैलेंस कर रहे हैं, तो रीबैलेंस के पीछे मेरा माइंडसेट क्या है और आपका माइंडसेट क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इसमें असर करेगा। यहाँ पे असर हो सकता है, क्योंकि आप उसको रीबैलेंस कर रहे हो तो आप मोमेंटम बेस जा रहे हो, कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेस जा रहे हो, शार्पे रेशियो बेस जा रहे हो, आप किस बेस पे उसको रीएलोकेट कर रहे हो। और रीएलोकेशन में आपका सही या गलत बहुत ज्यादा मैटर कर जाएगा, क्योंकि रीएलोकेट में आपको सबसे पहले तो एक टाइम डिफाइन करना पड़ेगा आपको। जैसे हम ट्रिगर लगाते हैं ना कि मेरा इक्विटी वाला पैसा डबल हो गया, मेरा इक्विटी वाला पैसा डबल हो गया, तो मैंने रीएलोकेट करना है। मतलब रीएलोकेशन में कौन से फैक्टर्स रहेंगे, कि आप उसमें 2 साल लगाओगे, कि आप उसमें डबलिंग का ट्रिगर लगाओगे, कि उसमें आप उसकी एज का ट्रिगर लगाओगे। मतलब बहुत से फैक्टर्स है रीएलोकेशन। ओके ओके।
रीबैलेंसिंग वाला सर डिसीजन होता है ना, ये मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन होता है सर। इसीलिए मैं नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं पूछा कि भाई नहीं सर, हमें नहीं करना है ये नहीं बोल रहा हूं, हमें नहीं करना ये नहीं कहीं पे बोला गया, बट हम इसको करें तो इसके लिए हमारी मार्केट रिसर्च और हमारा बिहेवियर एनालिसिस बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। इन केस आपने इन्वेस्टर के बिहेवियर को अच्छी तरह से नहीं समझा और मार्केट रिसर्च आपकी पूरी नहीं है, तो थोड़ा सा टेक्टिकल एलोकेशन या डायनेमिक एलोकेशन से थोड़ा सा दूर रहें, या फिर पोर्टफोलियो वाले के ऊपर छोड़ दें। Sir, can you hear me? There was it Yes, from of course, Guwahati. Hi. Sir, I wanted to know, most of my customer is having 15 to 20 years vision. Yes, sir. For asset allocation, they are more aggressive moderate, you can say. They don't want to take whole 100% risk, but aggressively they are good. So what do you recommend? Because Sir, most of my clients are 15 to 20 years. सर मैं सी मतलब Yes, इट sir. इज माय व्यू ओनली, ऑब्वियसली सारे फ्रेंड्स का व्यू I डिफरेंट understand. होगा। I चलो understand. आज क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मैं अपने व्यू देने की मुझे लिबर्टी दी हुई है कनक सर ने। True, sir. तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर 15 से 20 साल तो है उसके पास, बट ड्यूरिंग दिस 15 to 20 years व्हाट कैन बी द विड्रॉल्स, वो बहुत मैटर करते हैं, और वो किस स्टेज पे विड्रॉल्स है। अभी तक मुझे ऐसा इन्वेस्टर कोई भी नहीं मिला, बिलीव मी, अभी तक मुझे ऐसा इन्वेस्टर कोई भी नहीं मिला जो 15 से 20 साल में जिसने जीरो विड्रॉल किया हो। ठीक है, इट डिपेंड्स कि उसको विड्रॉल किस स्टेज में चाहिए, और इन केस वो आपने डिफाइन कर लिया एक बार। Sir, somebody is साहू जी एक मिनट म्यूट करेंगे। All Can right. you hear me, sir? Yes, Yeah. yes, of course. Yeah. So, Sir, what Kapil is ji, happening? I'm coming to that point. फिर फर्दर आप क्वेरी करना प्लीज। इसमें क्या कर सकते हैं आप, जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ ट्रांचेस आएंगे विड्रॉल के, तो बेटर टू डू ट्रांचेस। एक अलग गोल के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी प्लान करो। आप गोल बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाओ। यहाँ पे आप उसकी रिटायरमेंट के लिए मैक्सिमम पैसा इक्विटी में डालो। उसकी जो हायर एजुकेशन है बच्चों की, उसके लिए पैसा आप 70 और 60% इक्विटी में डालो। मींस डिपेंडिंग अपॉन द टाइम होराइजन। इन केस हायर एजुकेशन उसकी 10 साल है, तो वहां पे आपका 70% के आसपास इक्विटी होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। और आपका जैसे जैसे उसके बाद उसकी हायर एजुकेशन या उसकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन हो जाती है, इन केस हायर एजुकेशन 10 साल में है तो वेडिंग नेचुरल है 15 साल बाद होगी, और रिटायरमेंट नेचुरल है 20 साल बाद होगी। तो लेट वी टेक दिस एग्जांपल ओनली कि 10 साल बाद हायर एजुकेशन है, 15 साल बाद उसकी वेडिंग है बच्चों की मींस, और 20 साल बाद उसकी रिटायरमेंट है। तो 10 साल वाली आप 70-30 में डालना चाहिए, 60-70। 15 साल वाली जो है आपकी 80-90% तक जा सकते हो आप, बट रिटायरमेंट कॉर्पस 100% इक्विटी में होना चाहिए, और उसमें विद इन इक्विटी आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि आप उसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जा सकते हैं, और या फिर ऐसी कोई स्कीम चूज कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक वो मिक्सिंग करती रहे। मल्टी एसेट आती हैं, फ्लेक्सी एसेट्स, फ्लेक्सी कैप्स आती हैं, तो ये आप एक एसेट मिक्स दे सकते हैं। बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे ट्रांचेस बनाने चाहिए। उसका पूरा कॉर्पस एक तरफ से नहीं करना चाहिए, उसके बीच में गोल बेस्ड प्लानिंग कर लो। आपके पास सॉफ्टवेयर भी होंगे, और सॉफ्टवेयर नहीं भी है, इट्स वेरी इजी। आप वो चला दो कि उसकी इकट्ठा कॉर्पस लिया हुआ है आपने, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के हिसाब से चला लो उसको, और उन 10-15 सालों में भी आपने कम से कम 3 से 4 स्कीम्स जरूर लेनी है सर। 3 से 4 स्कीम जरूर लेनी है। इक्विटी में 4 स्कीम से नीचे कभी नहीं लेनी है, और डेट में आप 2 स्कीम्स ले सकते हो। देवशीष, Very good, Devajit. Thank you, sir. Thank you. Just before we end, I will just take 3 more minutes and I will share with you what more is there in next few sessions. There are a lot of games which will be conducted, and like volatility game is there.
not showing the videos, technical analysis. This is something which we are not playing during this season. Debt volatility game also we are not playing, but these are all games through which we can learn a lot of things. Fundamental, Varun will be conducting this session, and he will be talking about some interesting facts as far as fundamental analysis is concerned. Asset allocation game, yes, today we have already done. And this is the one which we will be playing next Tuesday, which is volatility game 2.0 with certain parameters. And there are other interesting stuff, influencer game, creativity game, vision game, USD, pop-up, card games, puzzle games, riddles, Kaun Banega, the dare to win for the mutual fund distributor, not only distributor, this is for the relationship managers. So these are which we all keep doing. VG Creatives also, which is there, we'll be sharing the. And this is something which is very, very interesting, 12-month FFF professional coaching and mentoring program, along with the backend software and the data and the analysis software, which you can get by becoming a FFF Pro member. There is a cost to this, but for now, for next 150 people, whoever is registering for the conference, okay, they will be getting it complimentary. So this is also there. And at the end of each session, we would like to say that these are certain parameters which one should use. I think Varun will be sharing some of them in the next session. So today, we have not shared any parameter through this presentation, but I think these are some of the present parameters which one should look at. We call them RVCC parameters. And as you get associated with Financial Freedom Fraternity, you will be knowing more about this. Kanak sir, sorry to interrupt in between. There is deposit here. Sir, how can I watch the last program? I missed it. Yeah, recording is available. Recording is available. Okay, we will share it. You must be receiving that in your email and also on the WhatsApp. Nishant has already shared it, sir. Yeah, already shared. So there are so many games and all coming up. I will share with you something. Like this is the last year's conference, and this year again we are having this conference at Mumbai JW Marriott. So glimpses of last year and this year. So games से लेके football से लेके networking. Fourth FFF conference in association with the Economic Times And this year will take place from 30th September 2023 to October 2nd, 2023 at JW Marriott Sahar Mumbai. Filled with learning through games, networking opportunities, and top-class speakers from asset management companies of India. A gala musical evening with celebrities to reward and recognize the hard work of MFDs based on AUM. The conference will also have India's largest FinExpo with over 50 presenters and product displays. The conference and expo will provide excellent opportunities for learning,
networking, and celebrating the hard work of MFDs and financial planners. The event will take place at And some of the speakers who will be there, Dr. Parimal Merchant, Kumar Well, and again, there are some very, very interesting stories. We'll be sharing the videos, and there is a residential registration fees to this and the non-residential registration fees. But for next few days, it is 32,000 rupees only, which includes GST. And for non-residential, it is 14,000 plus GST. So if anyone interested, you can just click on this thing, and on an email you will be receiving the link also. You can register and you can be a part, and you will be getting a complimentary 1-year FFF Pro membership also. So this is what the special offer is. Normally FFF Pro member is 15,000 rupees, but for the people who are attending, they will be getting this for 1 year free. So this is what you will be getting. So with this, we are done for the day. And at the end, finally, let's again thank our speaker, the very dynamic Devendra Goswami, who has taken the session and taken us through the asset allocation journey beautifully with his own experience. And the beautiful thing is he is wearing a badge which is written VC, which shows volatility coach, and a jacket which also has writing called volatility coach. Yeah. So that's really, really amazing. Like all our speakers do wear that. So hopefully when I will be presenting, I will also wear that. But really, really nice. Thank you, Devendra. It was really nice, and really looking forward to learn from you more as we all are learning from each other. Same here, So sir. thank you, friends. I'm sure we all are learning. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Devendra ji.